ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ الیاس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اگرچہ قرآن میں بہت مختصر ہے، تاہم اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہود کی ذہنیت اس درجہ مسخ ہو چکی تھی کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ جس کے کرنے پر یہ حریص نہ ہوں، اور کوئی خوبی ایسی نہ تھی جس کے یہ دل دادہ ہوں، اور انبیاء و رسول کے ایک طویل اور مسلسل سلسلے کے باوجود بت پرستی، نجوم پرستی، عناصر پرستی، غرض غیر اللہ کی پرستش کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے یہ پرستار نہ بنے ہوں۔ الیاس علیہ السلام کے بعد یسع علیہ السلام تشریف لائے۔ سورہ صاد آیت 48 میں فرمایا، اور اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یسع علیہ السلام بعض مورخین کے نزدیک ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور بعض کے بقول یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے باپ کا نام عدی تھا، گویا آپ کا پورا نام یسع بن عدی علیہ السلام تھا۔ یسع علیہ السلام کے بارے میں بھی کسی اہل علم نے تفصیل بیان نہیں کی، صرف اتنا مذکور ہے کہ وہ پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ ذکر نہیں فرمایا، نہ صحیح احادیث میں ان کے بارے میں کچھ ذکر آیا ہے، بس اسرائیلی روایات ملتی ہیں۔ یسع علیہ السلام الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ تھے۔ چھوٹی عمر ہی سے ان کی رفاقت میں رہنے لگے تھے، اور ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یسع علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور انہوں نے الیاس علیہ السلام کے طریقے ہی پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کتنی عمر مبارک پائی اور بنی اسرائیل میں کتنے عرصے تک حق تبلیغ ادا کیا۔ یسع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل بدحالی کا شکار ہو گئے، ان پر جابر حکمران مسلط ہو گئے، انہوں نے دین کو دنیا سے جدا کر دیا۔ ان حکمرانوں نے خوب ظلم کیا، بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود وہ بہت بڑے فاسق بن کر سامنے آئے، وہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھتے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل کئی معرکوں میں شکست سے دوچار ہوئے۔ بنو عمالقہ کے ساتھ ایک معرکے میں تو انہیں نہایت بری طرح شکست ہوئی، اور بنو عمالقہ نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین لیا جو کہ لکڑی کا تھا، اور وہ اس سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ اپنے مارکوں اور لڑائیوں میں وہ اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل اس کو دیکھتے تو ان پر سکینت بھی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس تابوت میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے باقی ماندہ آثار تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی میں موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور تورات کی تختیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تھا، آپ کے کپڑے بھی محفوظ تھے۔ اسی طرح ہارون علیہ السلام کی کچھ نشانیاں بھی تھیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اس میں آسمان سے نازل ہونے والا من و سلوہ کا مرتبان بھی تھا جو وہ وادی تیہ میں کھاتے رہے تھے۔ بہرحال یہ صندوق اس معرکے میں ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اس پر بنو عمالقہ نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کا افتراق اور انتشار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بادشاہوں پر بھی اس کے اثرات پڑے اور یہ صندوق انہیں بھی نہ مل سکا، یہاں تک کہ اللہ کے ایک معزز پیغمبر شمویل علیہ السلام ظہور پذیر ہوئے۔ انہیں شمعون بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے مترادف لفظ اسماعیل بنتا ہے، اور ان کا نام شمویل اس وقت عربی زبانوں کی کتابوں میں عام ہو چکا ہے۔ شمویل علیہ السلام نے دعوت توحید شروع کی، انہیں حق کی طرف بلانے لگے۔ چونکہ بنی اسرائیل اپنے انتشار اور تفرقے کو ایک عظیم مصیبت سمجھ رہے تھے، وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے۔ پھر انہیں یہ احساس ہوا کہ ایک بادشاہ کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے تاکہ وہ ان کے دنیاوی معاملات اور سیاسی امور کی باغ ڈور سنبھالے۔ چنانچہ اکٹھے ہو کر شمویل علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، ہم میں سے ایک شخص کو منتخب کر دیجئے جو ہم پر حکومت کرے، اور ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جب لڑائی ہو تو وہ ہماری قیادت کرے۔ قرآن کریم میں اس قصے کو بہت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 246 میں فرماتے ہیں، آپ نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا،
जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा, मुमकिन है कि जिहाद फर्ज हो जाने के बाद तुम जिहाद न करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों न करेंगे? हम तो अपने घरों से निकाले गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज हुआ तो सिवाय थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया और उलमा इस पर मुत्तफिक हैं कि ये शमवील अलैहिस्सलाम का वाक़या है। बनी इसराइल कहने लगे, ए शमवील, हमारे लिए एक हाकिम मुकर्रर कर दीजिए ताकि हम उसकी सरबराही में अलम जिहाद बुलंद करें और बनु अमालिका को शिकस्त देकर उनसे इंतकाम लें। शमवील अलैहिस्सलाम और यूशा अलैहिस्सलाम के दरमियान 460 साल का फासिला है। बनी इसराइल को जिहाद किए एक तवील अरसा गुजर चुका था जबकि वो फतह याब हुए थे। इस वक्त तो वो बुरी तरह शिकस्त खुर्दा थे। शमवील अलैहिस्सलाम कहने लगे, मुझे तो महसूस होता है कि तुम सिर्फ जुबान की हद तक ये कह रहे हो, जिहाद फर्ज होने पर तुम पीछे हट जाओगे। उन्होंने कहा, ये कैसे मुमकिन है जबकि बनु अमालिका ने हमें बहुत तकालीफ पहुंचाई है, हमें अल-कुद्स से निकाल दिया। बुख्ते नुसर बादशाह ने हमारी बहुत बड़ी तादाद को कत्ल किया है, लिहाजा हम तो उनसे जरूर लड़ेंगे। फिर अल्लाह ताला ने शमवील अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि जिहाद फर्ज हो चुका है। जब बनी इसराइल ने ये खबर सुनी तो सिवाय चंद एक के सब ने जिहाद से मुंह मोड़ लिया और ये वही लोग थे जो कुछ देर पहले पुख्ता अहद व पैमान कर रहे थे कि हम जिहाद करेंगे। शमवील अलैहिस्सलाम के साथ रहने वालों की तादाद 8000 थी जबकि पीछे हटने वाले लाखों की तादाद में थे, इसलिए कि जब बनी इसराइल मिस्र से आए थे तो उनकी तादाद 6 लाख थी और इस वक्त तक तादाद बहुत बढ़ चुकी थी। अब जो लोग जिहाद के लिए तैयार हुए उन्होंने पूछा कि हमारी क़यादत कौन करेगा। शमवील अलैहिस्सलाम ने उन्हीं में से एक शख्स तालूत को मुंतखब किया। तालूत बिन कैश याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिन्यामीन की नस्ल से था। तालूत से पहले बनी इसराइल के जितने बादशाह थे तमाम के तमाम यहूदा बिन याकूब की नस्ल से थे। बनी इसराइल को बहुत ताज्जुब हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बादशाह यहूदा की नस्ल से होगा, लेकिन हो गया बिन्यामीन की नस्ल से। चुनाचे उन्होंने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया और आगे से बातिल तावीलात करने लगे। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 247 में फरमाते हैं, और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। तो वो कहने लगे कि भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? उससे तो कहीं ज्यादा बादशाहत के हकदार हम हैं। उसको तो माल में फराखी भी नहीं अता की गई है। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने उसी को तुम पर बरगुजीदा किया है, उसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला, इल्म वाला है। तालूत एक गरीब आदमी था, माली हैसियत भी अच्छी नहीं थी, चमड़ों को रंग कर पेट पालता था, लेकिन उस वक्त इल्म हिकमत में उसका कोई सानी नहीं था और जिस्मानी डील डॉल भी इस कदर था कि जो एक बार देखता देखता ही रह जाता। अल्लाह ने उसे बहुत अच्छा जिस्म और आज़ा अता फरमाए थे। रंग भी सफेद था, लेकिन चूंकि वो यहूदा की नस्ल से नहीं था, कहने लगे इसकी निस्बत तो हम ज्यादा हकदार हैं कि बादशाह बने। उनकी बात का जवाब शमवील अलैहिस्सलाम ने यह दिया कि ये इंतखाब मेरा नहीं, अल्लाह ताला का है और बादशाहत के लिए अक्ल और जिस्मानी ताकत की जरूरत होती है। बादशाहत यूं भी अल्लाह के इख्तियार में है, जिसे चाहे अता कर दे। ये सुनकर उनमें से अक्सर ने लड़ने से इनकार कर दिया, अल्लाह के नबी की इताअत भी छोड़ गए। इस नाजुक मौके पर शमवील अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर मैं तुम्हारे पास कोई ऐसा निशान और मोजज़ा ले आऊं जो साबित कर दे कि ये अल्लाह का इंतखाब है, तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन कर लोगे? वो कहने लगे, जी हाँ। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें एक मोजज़ा अता फरमाया। इसका जिक्र सूरतुल बकरा आयत 248 में आया है कि उसकी बादशाहत की जाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमी है और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है।
फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील है अगर तुम ईमानदार हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने शमवील अलैहिस्सलाम की नबूवत और तालूत की बादशाही साबित करने के लिए नाजिल होने वाले मोजज़े और अलामात का जिक्र किया है। यानी वो ताबूत जिसे बनु अमालिका ने छीन लिया था वो वापस आ जाएगा और फरिश्ते उसे उठाकर लाएंगे। चुनाचे लोगों के देखते ही देखते अल्लाह के फरिश्तों ने उस ताबूत को लाकर तालूत के सामने पेश कर दिया। ये मोजज़ा देखकर वो मुती हो गए। अब तालूत इन लश्करों को लेकर दुश्मन की तरफ बढ़े। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 249 में फरमाते हैं, जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है। जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं, और जो उसे न चखेगा वो मेरा है। हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सब ने पानी पी लिया। जब तालूत ने सफर शुरू किया तो रास्ते में एक नहर आ गई। इधर लश्कर प्यासा था। अल्लाह ताला ने इसके जरिए मुखलिस लोगों को अलग करने के लिए एक इम्तिहान लिया। ये नहर नहर उर्दुन थी। फिलिस्तीन और उर्दुन के दरमियान रवां दवां थी भी वो दोनों के कब्जे में। आजमाइश और इम्तिहान के लिए हुक्म ये हुआ कि बावजूद सख्त प्यास के पानी को इस्तेमाल न करना, सिर्फ एक चुल्लू भरकर पीने की इजाजत थी, और जो शख्स सैर होकर पिएगा वो आपके साथ नहीं जा सकेगा। जब वो गुजरने लगे तो चंद एक ने एक चुल्लू पानी लिया, बाकी सब ने ज्यादा पानी पी लिया और इस आजमाइश में नाकाम हो गए। कामयाब होने वालों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 313 थी। सही बुखारी में सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हम असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में ये बातें किया करते थे कि ग़ज़वा बद्र में शरीक होने वालों की तादाद तालूत के साथियों के बराबर थी। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 249 में फरमाते हैं, तालूत मोमिनों के साथ जब नहर से गुजर गए तो वो लोग कहने लगे, आज तो हम में ताकत नहीं कि जालूत और उसके लश्करों से लड़े। लेकिन अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखने वालों ने कहा, बसा औकात थोड़ी सी जमातें बड़ी और बहुत सी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पा लेती हैं, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जालूत का लश्कर बहुत बड़ा था, जबकि तालूत के साथ सिर्फ 313 आदमी थे। ये सूरत हाल देखकर बनी इसराइल घबरा गए। बोले, हम तो तादाद में बहुत थोड़े और निहायत कमजोर हैं, किस तरह इनसे जिहाद कर सकते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग निहायत पारसा और अल्लाह पर यकीन रखने वाले थे। ये और शमवील अलैहिस्सलाम दूसरों का हौसला बढ़ाने लगे। आखिर वो लड़ाई पर तैयार हो गए। मुकाबला हुआ, और जब उनका जालूत से और उसके लश्कर से मुकाबला हुआ तो उन्होंने दुआ मांगी कि ऐ परवरदिगार, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कुफ्फार के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। मुकाबला शुरू हुआ। जालूत अपने लश्कर से निकला और मुकाबले के लिए ललकारा। ये बहुत ताकतवर था। उसका पूरा बदन असलहे से लैस था। मुसलमान उसे देखकर डर गए। तालूत ने अपने साथियों से कहा, कौन इसके मुकाबले में निकलेगा? सब खामोश रहे। उसके लश्कर से एक नौजवान निकला। ये दाऊद अलैहिस्सलाम थे। उस वक्त ये सिर्फ 16 साल के थे। ये रस्सी में पत्थर बांधकर उसको घुमाकर फेंकने के माहिर थे। निशाना जबरदस्त था। पत्थर बहुत तेजी से जाता था। इसकी ज़रब बहुत शदीद होती थी। जालूत ने इन्हें देखकर मजाक उड़ाया। उसने कहा, नौजवान, तुम अभी बच्चे हो, वापस जाओ, मेरे मुकाबले में किसी बड़े को भेजो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी रस्सी को घुमाया। उसमें बंधे हुए 3 पत्थर खास अंदाज से फेंक दिए। तीनों गोली की रफ्तार से आए और उसके माथे पर लगे। जालूत का सर पाश पाश हो गया और वो मर गया। उसके मरते ही जालूत के लश्कर में खौफ हरास फैल गया। तालूत ने अपने 313 मुजाहिदों के साथ उन पर हमला कर दिया। उनमें खलबली मच गई, संभल न सके, पीठ फेर कर भागे। बस अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने जालूतियों को शिकस्त दे दी और दाऊद के हाथों जालूत कत्ल हो गया। यूं अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दोबारा गलबा अता फरमाया। फतह के बाद तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना दामाद बना लिया। इस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम तालूत के बाद बादशाह बने।
اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 251 میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت اور حکمت عطا فرمائی اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہت اور نبوت ان کے پاس جمع ہو گئی، اور ایسا طویل عرصے کے بعد ہوا تھا۔